Welcome again in 12th class physics and second chapter electric potential and capacitance. Okay, in our previous lecture I was studying that electric potential and potential difference and electric potential due to a point charge. Okay, and in this lecture we will discuss on electric potential due to a dipole. Okay, as you know that what is dipole is what two equal and opposite charges are separated by a small distance, that is electric dipole. Okay, so before going to start our derivation we will discuss on some consideration, because consideration is very important for any derivation in physics. Okay, so you must write the language before any derivation. Okay, so minus q and plus q, this is the dipole, and this dipole is separated by distance, that is the 2a. What is 2a? From this distance to this distance, so I write here 2a. This is the 2a. Okay, and this is O is the midpoint, so this distance is half and this is also half, so A and A. Okay, now electric potential due to dipole at axial. So first we discuss on axial position. Axial. Okay, so I consider a P point which is on the axis of this dipole. Okay, so this P point is on the axis of dipole. Okay, जस्ट इस डाइपोल के एक्सिस में है, बिल्कुल उसके सामने सिद्ध में है. ओके, नाउ स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट एंड p. स्मॉल r क्या है? इस o और p के बीच की डिस्टेंस. ओके, नाउ what is the distance between this minus q charge and p point? इस p point और सॉरी इस माइनस q चार्ज और इस p पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? देखिए ये r है और ये a है, तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई? r प्लस a. ओके, अब आप यहाँ पर देखिए इस प्लस q चार्ज और p पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये टोटल r है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये कितना है? a है. ये r है और ये a है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? r माइनस a. सो आई राइट हियर r माइनस a. ओके, किसी को भी समस्या इस डायग्राम में आप देख लीजिए अच्छी तरीके से. ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन. एट एक्सियल पोजीशन means at p point. This is the point where we want to find the electric potential. Okay, so electric potential at p due to a minus q charge is v1. v1 एज्यूम कर लिया कि इस चार्ज से इस p पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? v1 है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4πε0 माइनस q अपॉन r, एंड r इज व्हाट? r प्लस a. ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये हम डिराइव कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ओके, सो kq/r 1/4πε0 q/r. सो ये q हो गया और ये r मतलब r प्लस a. ये डिस्टेंस अपन लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके, नाउ इस प्लस q चार्ज से इस p पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? ये मैंने मान लिया क्या है? v2 है. ओके, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p ड्यू टू प्लस q चार्ज इज v2, and what is the value of this? 1/4πε0 q upon r minus a, because this is the distance between charge and point of consideration. Okay, so this is equation first and this is the equation number 2. Now we want to find the total potential due to dipole. So electric potential at p due to dipole is what? v1 plus v2. Okay, v is the total potential
एंड व्हाट V1 प्लस V2, दोनों चार्ज से जितना पोटेंशियल है आप उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल पोटेंशियल जो है वो आ जाएगा. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड V1 की वैल्यू आपके पास में है 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस ए, प्लस V2 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए. ओके, सो टेक द कॉमन. व्हाट इज कॉमन? देखिए Q अपॉन 4πε0 एंड Q अपॉन 4πε0 इज कॉमन. And what is remaining here 1 upon from this. यहाँ से अगर मैं Q अपॉन 4πε0 अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ आप देखिए क्या बचेगा 1 अपॉन R माइनस ए. ये माइनस यहाँ पे लगा दिया और ये यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये तो बाहर आ गया, ये बचेगा सिर्फ R प्लस सी. ओके, इफ आई टेक द एलसीएम देन R minus a into R plus a, what? R square minus a square. कैसे लिखा? What is the formula for a plus b into a minus b? Is what? A square minus b square. So I write here R square minus a square. Okay. Now R plus a minus, ये minus यहाँ पे लगा दिया, and what is R minus a? Okay. So plus R and minus R, these two are cancelled. एंड a माइनस प्लस a, सो a प्लस a कितना हो गया 2a हो गया. ओके, सो Q अपॉन 4πε0 2a अपॉन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल. क्या हो जाएगा टोटल पोटेंशियल इज व्हाट? प्लीज सी हियर, V equal to V1 plus V2 equal to, देखिए 2QA अपॉन what 4πε0 R square minus A square. Okay, what is 2QA? Remember, electric dipole moment is represented by what? P. So I write here P in place of 2QA. Okay, so P upon what? 4πε0 R square minus A square. Okay, this is the value of V. Now if we more simplify this, अगर मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करूँ तो क्या होगा, देखिए आप, ये हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0, ओके, P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. आप ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिख देंगे, P इक्वल टू 2QA. अब एक कंडीशन आप लिखिए, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A. Okay, if R is very very greater than A, then what? V equal to 1/4πε0 into P upon R square, because A neglect आप कर देंगे तो ये हो जाएगा. So V equal to what? 1/4πε0 P upon R square. This is the formula for electric potential due to dipole at axial position. And what is the formula for electric field due to dipole? 1/4πε0 2p upon r cube. Okay, so this is the difference. Please write. Now electric potential due to a dipole at equatorial. Equatorial means a vertical position. Okay, so I consider electric dipole minus Q to plus Q having a distance 2a, okay, and this is the midpoint of the dipole. Okay, O is the midpoint of the dipole, so A and A is the separation. Now
a P point on the vertical position of dipole is distance r, okay, from O. What is the distance between O and P? That is the r. Okay, so if I take a right angle triangle, then what is the length of this side? This side, if I take one point A and this is the B point and P, so what is the AP? AP is what? A square plus r square under root ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम, आप सभी लोग जानते हैं. ओके, एंड इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? पी ओ बी में ये आई है, ये आर है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट. ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एट पी. इस पी पॉइंट पर माइनस क्यू और प्लस क्यू से कितना पोटेंशियल होगा ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं. सो आई राइट हियर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी इज V1. मैंने मान लिया कि ये जो पोटेंशियल है इस चार्ज से यहाँ पर कितना है? V1 है. तो V1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? V1 इज व्हाट? 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर. आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर मीन्स ये सेपरेशन ए पी, ये कितना है? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट पी इज व्हाट? V2. इस प्लस क्यू चार्ज से इस पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा वो मैंने एज्यूम किया कितना? V2. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2? V2 इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q प्लस Q अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द सेपरेशन EB. ओके, नाउ द टोटल पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल. इस P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2. ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, देन यू विल गेट द आंसर. ओके, V1 और V2 की वैल्यू आप पुट करिए, क्या मिलेगा आपको बताइए. ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ V1. V1 इज 1/4 एप्सिलॉन माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस V2 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में. दोनों सेम वैल्यू है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट चार्ज है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगी, सिंपली 0 आ जाएगा. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन V इक्वल टू 0. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप लोग. एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन. एक्सियल पोजीशन पर क्या वैल्यू थी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? 0 है. ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है. प्लीज राइट इन योर कॉपी.